what, how do we name them? Okay, what are the rules for naming them? How do we draw the structure by if the name is given? So this was more of a, okay, this is sad, I'm getting a call, just give me a second. Yes. Yes. Yes, sir. Ach. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चे. So we are going to see preparation of alkanes from unsaturated hydrocarbons, alkyl halides and carboxylic acids. I'm very sure you all are aware of all these terms. ठीक है? ये कुछ नया नहीं है आपके लिए. So now when I say from unsaturated hydrocarbon, अभी unsaturated hydrocarbon का मतलब क्या होता है? अल्केन या फिर अल्कीन, मतलब a presence of at least one double or triple bond. अब आपको ये जो सामने दिख रहा है, ये this is an example of alkenes. ठीक है? This is an example of alkene. अच्छा, R, ये मैंने बताया था पहले, R is nothing but the representation for an alkyl group. Yes. Yes. Yeah. जैसे हम लोग X हैलोजन के लिए लेते हैं ना बेटा, X हैलोजन के लिए लेंगे, Yes. ठीक है? तो उस तरीके Yes. से OH जैसे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ले रहे हैं, COOH हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लेते हैं, उसी तरीके से R is the general representation of an alkyl group. Alkyl group मैंने आपको डिटेल में कल बताया था. Alkyl group is nothing but alkane minus one hydrogen atom, CnH2n plus Plus 1. one. अच्छा, अब ये जो आपको सामने दिख रहा है बेटा, that is a general form of alkene. This is a general form of alkene. R मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, या फिर यहाँ पे R की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है. तो it can be what do we say, ethene, it can be propene, it can be butene, it can be pentene, कोई भी हो सकता है. ठीक है? तो ये कोई भी अल्कीन हो सकता है. Now any alkene, if you react it with hydrogen, ये सामने बाजू में क्या है, plus HH. What is HH? H2. What is H2? What is H2? Hydrogen. Dihydrogen. Hydrogen. Hydrogen. हाँ, हाइड्रोजन डाई. ठीक है, डाई हाइड्रोजन. सो अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है बेटा, ये जो डाई हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका बॉन्ड टूटेगा, और ये जो मेरा अल्कीन है, this double bond between these two carbon atoms will break. Now once this double bond between these two carbon atom breaks, one क्या बोलते हैं, bond becomes free over here and one becomes free over here, right? Yes. Yes. So this these two hydrogen atoms will come and attach over here, one hydrogen over here, one hydrogen over here. तो जब ये unsaturated या फिर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सब सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे स्ट्रक्चर में, तो ये अल्कीन क्या हो जाएगा, Alkane. Alkane. अल्कीन बन जाएगा. अच्छा, now what are we doing in this reaction? In this reaction we are simply adding hydrogen. We are simply adding hydrogen to a compound. So addition of hydrogen is called as hydrogenation. क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? Hydrogenation. ठीक है, addition of hydrogen is called as hydrogenation. Hydrogenation. Addition of water is called as hydration. दो अलग अलग चीजें बेटा. Addition of water is called as hydration. Addition of hydrogen is called as hydrogenation. अच्छा, removal of hydrogen is called as dehydrogenation, and removal of water is called as dehydration. कटला करे सगळ्यांना? Yes. Yes. अच्छा Yes. अच्छा, अभी बेटा ये मॉलिक्यूल के अंदर अपन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, अपन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. What else can I call this reaction, if you can recall? Reduction. Very good beta, very good. ठीक है, it is very correct, it is reduction. Why it is reduction? Because Adding of hydrogen, Adding of hydrogen. Adding of hydrogen. yes beta, addition of hydrogen is called as reduction. So this reaction is a reduction reaction. Which reaction? Hydrogenation of alkenes.
So Yes. hydrogenation of alkenes is one of the methods of making alkanes. We are converting alkenes to alkanes by simply adding hydrogen. But ये directly नहीं होगा, ठीक है, ये directly नहीं होगा, तो यहाँ पे we will require catalyst for the reaction to occur faster. So what catalyst we are going to use? Platinum, palladium or nickel, ठीक है, तब जाकर के ये रिएक्शन होती है. Did you see? जादू कैसा हुआ, मस्त. Yes. This is called as hydrogenation. जी बोले, किसी को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो ये लिख लो. Done, sir. Very good, बेटा. Can we go ahead? Yes. Wait, sir. Yes, sir. एक मिनट सर. अच्छा, अच्छा. So what is the topic name, beta? The topic name is preparation of alkanes. Under preparation of alkanes, first point you will write from unsaturated hydrocarbons. उसके अंदर आप general reaction लिख रहे हो alkenes का. Alkene का general formula यहाँ पे लिखा आपने, plus H2 in the presence of catalysts such as platinum, palladium or nickel will give us alkanes. ये बेटा, ये R की जगह आप या तो हाइड्रोजन रखो या फिर कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप में लो रखो, आपको सैटिस्फाइंग इक्वेशन मिलेगा, ठीक है. Yes. अच्छा, कैन वी गो अहेड नाउ? Yes. Yes sir. No. हु इज सेइंग नो? लिख लो. Now see, ये बेटा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया था तुमको? No. No, sir. Yes, adsorption and colloids. Yes. sir. Yes. I'm so sorry, I'm Yes. so sorry. पढ़ा. सरफेस केमिस्ट्री नाम नहीं था उसका. आपको एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड वाला चैप्टर पढ़ाया था, राइट? Yes. 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 उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना कैटलिस्ट कैसे काम करता है. Yes. Yes. रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करके रिएक्टेंट्स के लिए सरफेस एरिया बढ़ा के देता है और Yes. क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. Forward करते हैं. Yes. अगर आप देखेंगे तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ज्यादा अच्छे से कैटलिस्ट की तरह काम कर पाते हैं बिकॉज दे हैव Yes. 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 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल. ये भी मैंने आपको बताया था. Yes. ये Yes. 12th में और detail में आप पढ़ोगे तो बस ये वही है. Yes. हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इसके सरफेस पे इजीली तोड़ता है, ठीक है. अगर प्लैटिनम और पैलेडियम सॉरी, अगर प्लैटिनम और इतनी देर से नहीं कॉलें आ रही थी. Sorry. Now, if you see, the reaction in the presence of platinum and palladium can be carried out at room temperature and normal atmospheric pressure. कोई अलग special conditions नहीं चाहिए. But अगर निकल अगर अपन यूज करेंगे as a catalyst, then it requires high temperature and pressure. अभी देखो, ये दोनों ही तरीके से मतलब ये है. निकल कैसा है, सस्ता और इजीली अवेलेबल है, बट उसको थोड़ा अपने को टेम्परेचर कंडीशंस और प्रेशर कंडीशंस कंट्रोल करना पड़ेगा. प्लैटिनम और पैलेडियम को अगर यूज करेंगे तो कोई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, बट प्लैटिनम और पैलेडियम आर कॉस्टली. तो एवरीथिंग हैज इट्स प्लस एंड माइनस Yes. पॉइंट. ठीक है, दिस इज जस्ट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन.
ये जो एग्जांपल देखो, इथीन ऑन हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट विल गिव मी, इससे मुझे कौन सा अल्किन मिलेगा बेटा? Ethane. 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 एग्जैक्टली, जो मेरा अल्कीन है उसी का करस्पॉन्डिंग मेरे को अल्केन मिलेगा, ठीक है, उसी का करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेगा मुझे, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. CnH2n से वो क्या हो रहा है, CnH2n+2, सिंपल एज दैट। हम लोग 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना बेटा उसमें। Are you understanding? Are you connecting the Yes. small dots which I'm saying in between? Yes. Yes, Yes, sir. क्या है CnH2n, अल्केन क्या है CnH2n+2, ये अपन 2 हाइड्रोजन ही ऐड कर रहे हैं ना बेटा हाइड्रोजनेशन में। Yes. लैपटॉप में आग लगी। Yes. ठीक है। Yes. सर इथेन में भी 2 हाइड्रोजन ऐड किया और बोला रिएक्शन बेटा? होगा ना? किसमें? इथेन में भी हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन ऐड किया तो रिएक्शन होगा क्या? इथेन, अच्छा शुभम, इथेन में अपन हाइड्रोजन कहाँ ऐड कर सकते हैं? वो तो सैचुरेटेड कंपाउंड है ना। यस तो कैसे ऐड करेंगे इथेन में? इथीन में 2 हाइड्रोजन ऐड किया, यस तब जाके मुझे इथेन मिला, ठीक है बेटा? कंफ्यूजन दूर हुआ? यस आर यू श्योर बेटा? आई डोंट थिंक यस सर, सो। समझा। पक्का? नहीं, मैं पूछ रहा Okay. हूँ कि आगे जाता है कि नहीं रिएक्शन अगर हाइड्रोजन नहीं ऐड आगे कैसे जाएगा बेटा, वो तो सैचुरेटेड है ना, यस है ना? यस मैंने बताया था ना, सारे बॉन्ड सैटिस्फाइड हैं, वो इजीली नॉन रिएक्टिंग होता है जनरली, ठीक है ना? यस सर इथेन अच्छा, में 4 लगेगा ना? क्या बोल रहे बेटा? इथेन में भी होएगा ना 4 हाइड्रोजन डाल के? Just tell me one thing बेटा, is there a corresponding alkene for methane? No, right? हम लोग मीथेन को इस No. वे से नहीं बना सकते क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग अल्कीन नहीं है, इसलिए तो हम लोग इथेन से ही प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें। सर इथाइन बोला, मीथाइन नहीं। ये भगवान, एक तो इसकी आवाज नहीं आती लड़के की, क्या Sir, बोल रहे हैं? ethane. Ethine. थाइन। Ethine. इथाइन, हाँ, इथाइन के अंदर अपने को 4 हाइड्रोजन लगेंगे, यस ठीक है H4 ना? लगेगा। 2H2 लगेगा, वो अलग प्रोसेस रहेगा, उसमें भी अपन देखेंगे, ठीक है? यस। H4 नहीं रे बेटा, 2H2, H4 करके कुछ होता है क्या? No. ओ अपने आप से एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन्वेंट मत करो बेटा, ठीक है? H2 ही होता है, ट्वाइस H2 हो जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है? यस Yes. The second way of making alkanes or rather preparing alkanes is from alkyl halides. Alkyl halides का general formula is RX. RX, R is for alkyl, X is for halide. ठीक है? X can be Halide. chlorine, bromine, iodine, fluorine, ठीक है? And R is Yes. Halogen. it can be CH3Cl, it can be C2H5Br, it can be C3H7I, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Let us see. So there are 2 ways, alkyl methods में 2 तरीके से हम लोग alkenes बना सकते हैं, either by reduction method or by Wurtz reaction. अतः रिडक्शन मेथड इज सिंपल रिडक्शन मेथड बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और अपना जो Cl या फिर X है उसको वहां से निकालेंगे और उसकी जगह पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो अल्केन Yes. मिल जाएगा, राइट? Yes. दैट इज रिडक्शन, बिकॉज ये जितने हलाइड्स हैं ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इज रिडक्शन, राइट बेटा? रिडक्शन। Yes. क्रॉस रिएक्शन याद है कि नहीं याद है कि सारा भूल गए? याद है सर, याद है। याद हाँ बेटा, वेरी गुड। और दूसरा है वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन क्या है वो देखेंगे। वर्ड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको सेपरेटली क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन वर्ड्स रिएक्शन विद अ सूटेबल एग्जांपल, 2 मार्क्स। सर होता क्या है वर्ड्स रिएक्शन? हाँ वर्ड्स रिएक्शन आ मतलब जाओ। क्या होता है? हाँ बताता हूँ, ये देखो, अल्काइल हैलाइड्स reacted with nascent hydrogen will give me alkane in the presence of zinc or copper as catalyst in ethanol or zinc in the presence of hydrochloric acid। ये जो एरो के ऊपर लिखते हैं हम लोग बेटा, वो क्या होता है अपना, वो कैटलिस्ट होता है, ठीक है? Catalyst. हाँ Catalyst. कैटलिस्ट, हाँ हाँ। यहाँ पे देखो H2 यूज नहीं किया है, 2H
यहाँ पे लिया है, नेसेंट हाइड्रोजन हम लोग ने यूज किया है। तो ये जो व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन, एनीबॉडी वो क्या नोस? होता है? नो। H. एनीबॉडी नोस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन सुना है पहले कभी? सिंगल Single atoms आ X, गया, single single atoms. O. Single atom, हाँ, that's correct, but it actually means naturally occurring. Yes, okay. Okay. Sorry, I am so पर sorry. I'm so नेचुरल का sorry. बॉन्ड बना के नहीं, it's not naturally occurring. It means freshly prepared. ठीक है? यस मतलब H2 को तोड़ करके H तुरंत बनाया हुआ और उसको तुरंत यूज कर लेगा. That is nascent hydrogen oxygen. ठीक है? उसका मतलब एटॉमिक सर- फॉर्म, उसका एटॉमिक फॉर्म, फ्रेशली मेड एटॉमिक फॉर्म, उसका एटॉमिक फॉर्म स्टेबल नहीं रहता है, तो जैसे ही एटम बना तुरंत उसको जल्दी रिएक्शन करना के लिए होगा। यूज कर लिया, वैसा. ठीक है? Yes. सर हाँ. हैलाइड में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है ना? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। यस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा अरे उसका हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, यहाँ पे उसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है ना आर के साथ. Yes. ओके. किधर है? तो नहीं। यहाँ पे क्या होगा? हाँ, ओके. एक हाइड्रोजन, बेटा प्लीज म्यूट कर दो बैकग्राउंड. इसमें क्या? किसका है ये? आर्यन आपका म्यूट कर दो ना बेटा प्लीज, आवाज आ रहा है तुम्हारा पीछे से. चलो, आर्यन की वैसे आवाज नहीं सुनी थी, आज सुन ली, कोई बात नहीं. ये देखो Yes. अपना एक हाइड्रोजन जो होता है वो एक्स मतलब अपना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मुझे हाइड्रोजन हाइलाइड दे देता है, मतलब सिंपल कोई भी एसिड HCl HBr वगैरह देगा. और एक हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और मुझे क्या मिलता है? अल्केन मिलता है. हु इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट ZnCu, इथेनॉल Zn और HCl. ठीक है? दिस इज द जनरल रिएक्शन. ये जनरल रिएक्शन है. इसके लाइंस के ऊपर आपको क्वेश्चन दे देंगे एग्जाम में. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देंगे कि भाई मेरे पास इथाइल आयोडाइड है और उसको मैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, कॉपर, इथेनॉल एंड मतलब वो जो है अपने कैटलिस्ट वो लिख के देंगे और आपको पूछेंगे इसका प्रोडक्ट क्या होएगा. तो अब आर्यन बताओ बेटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा? आर्यन तिवारी अभी तो बोल रहा था. सब लोग मेरे पूछने के टाइम पे गूंगे क्यों हो जाते हैं? कोई बात नहीं. आर्यन तिवारी नहीं बोल रहा है तो आदित्य पुजारी बोलेगा. आदित्य पुजारी, आदित्य पुजारी फ्रॉम बैच 1. ओके. अनिमेश, अनीश, सीरियसली इतने लोग सो रहे हैं? दिव्येश, हेलो सर। थैंक यू बेटा, ये तो जग रहा है. चलो दिव्येश, ये देखो बेटा यस आपके सामने इथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन दिया है, तो इसमें से कौन सा अल्केन और कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आप गैस कर सकते हो बच्चे? सर, वेट मिनट। ये देखो ऊपर जो है ना, ऊपर से कंपेयर करो और नीचे आंसर लिखो, सिंपल एज दैट. ओके देख बेटा ऊपर अल्काइल है, नीचे क्या है? इथाइल है. तो आर की जगह क्या है? इथाइल ग्रुप है और एक्स की जगह क्या है? आयोडीन ग्रुप है. ठीक है? अब Yes. उसको बस यहाँ पे रिप्लेस कर दो साइड में, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा. इथाइल आयोडाइड को when I react it with hydrogen, what alkane and what hydrogen halide will I get? And the answer is in front of you बच्चे. Do not get scared, डरो मत. आंसर Yes, आपके sir. सामने है, मैंने आपको बता भी दिया, आपको सिर्फ मुझे उसको प्लेस करके बताना है कि भाई ये आंसर है. सर नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहा है? ओके. ये देखो बेटा सामने देखो, इथाइल आयोडाइड दिख रहा है आपको? इथाइल आयोडाइड किधर है सर?
देखो ईथान यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इथाइल आयोडाइड, ये हाँ ये कंपाउंड है yes, सर। अभी देखो, अभी प्रॉब्लम पता है क्या है आपको, क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डैश स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे C2H5 लिख के देता तो आपको समझता कि ये इथाइल आयोडाइड है, राइट। यस इसको 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया बेटा, देखो अच्छा, इसको ना ये 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ, हाँ इसमें से एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ। तो इथाइल के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को, इथेन मिलेगा, ठीक है। यस यस सर। और एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करे क्या देगा मेरे को, इथाइल हाइड्रोजन आयोडाइड, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। अभी Yes. समझा बेटा? यस सर पक्का? यस सर। अच्छा, वो डैश स्ट्रक्चर से कंफ्यूज मत हो जाओ गाइस। अदर्स, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. 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 Yes, yes, yes. Sir, repeat once, please. I'll repeat it बेटा, ओके नो इश्यूज। ये देख बेटा, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्कीन, सॉरी नॉट अल्कीन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है बेटा? अल्काइल हैलाइड वो होता है, अल्काइल तो अपना क्या होता है, CnH2n+1, मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल दिया तो वो अपना हो जाता है अल्काइल, ठीक है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल इज R, ठीक है। यहाँ पे इट इज इथाइल आयोडाइड, दिस इज C2H5, और X की जगह, X इज व्हाट, हैलोजन ग्रुप में से कोई भी एक एलिमेंट। यहाँ पे लोग ने क्या लिया है, आयोडीन, तो ये I आ गया यहाँ पे। तो दिस इज C2H5I। इसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अपन इसके साथ इनको रिएक्शन कर रहे हैं। जब इनका रिएक्शन होता है तो रिडक्शन रिएक्शन होता है। अतः अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, रिएक्शन में एक हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन ग्रुप के साथ अटैच हो जा रहा है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जा रहा है। अगर आप किसी भी अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो अल्केन बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्केन। बिकॉज व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1 और अल्केन क्या है, CnH2n+2। तो दोनों में कितने हाइड्रोजन का फर्क है, 1. एक हाइड्रोजन का फर्क है। One. तो ये हाइड्रोजन One यहाँ पे hydrogen. अटैच हो गया। तो अब इस एग्जांपल में देखो बेटा, यहाँ पे अल्काइल में क्या दिया है, इथाइल ग्रुप दिया है। इस इथाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अटैच हो जाएगा और अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इथेन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके बेटा, समझा अभी? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा, ये लिख लो प्लीज, जनरल Done, sir. रिएक्शन एंड क्या बोलते हैं, जनरल रिएक्शन एंड No. एग्जांपल। ये ना बिल्कुल मैथ जैसा बेटा, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको अच्छे से आएगा। और भाई कितने आसान तरीके से लिखकर कितना प्यारा दिया हुआ है उसके ऊपर। Yes. Sir, Zn और Cl activators है. नहीं, Zn and HCl, Zn and HCl they are क्या बोलते हैं, catalyst. You either use zinc or copper with ethanol or you use zinc with HCl, either of the two, ठीक है। Yes. सर अगर अभी आयोडीन लिया है अपन ने हैलाइड आयन की जगह, तो अगर कोई ऐसा आयन रहा जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो मतलब मैं समझा नहीं इस बेटा, मतलब हाइड्रोजन, आयोडीन की जगह ना क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। बट फिर अगर हाइड्रोजन डिस्प्लेस ही नहीं कर पाया उसको तो इट्स नॉट अबाउट डिस, अच्छा ओके फाइन, आई एम अंडरस्टैंडिंग, हाइड्रोजन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बट हाइड्रोजन कैन इजीली रिएक्ट विथ क्या बोलते हैं, हैलाइड ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम लोग ने स्पेसिफिकली अल्काइल हैलाइड्स ही लिया है। अगर दूसरा कोई कंपाउंड रहेगा तो हम लोग हाइड्रोजन नहीं लेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं नेसेंट हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेज में जो हाईली रिएक्टिव होता है बेटा, ठीक है। ओके समझा? यस सर। Others, any doubt? No. No.
ये लिख लिया सबने? Yes. 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 बाकी जिसको मैंने क्वेश्चन पूछा था और नहीं समझ पाया था बेटा, तुमको समझा अभी? मैं नाम भूल गया, आई एम सो सॉरी। यस सर, मेरा नाम दिवेश है सर। इसका नाम दिव्येश। हाँ दिव्येश, समझ में आया बेटा तुमको? यस यस। वेरी गुड। क्या बकवास बात बताया। मेरा कजन यूएस से चॉकलेट लेके आया, इससे अच्छा चॉकलेट तो इंडिया में मिलता है, और तो चॉकलेट। ओके, बट ये मैं बोल नहीं सकता, वरना मेरी माँ को बुरा लगेगा। ओके, नाउ सी दिस। अपना नाउ लेट अस सी हाउ टू ऑब्टेन अल्काइल हैलाइड्स थ्रू द वर्ड्स रिएक्शन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। ये इजी भी है, बहुत इजी है ये बात। ये देखो, RX एक अल्काइल हैलाइड, RX the same alkyl halide. It is reacted with sodium in the presence of dry ether. In the presence of dry ether. अब देखना बेटा यहाँ पे क्या होगा। ये बेटा तुम लोग ने NaCl का नाम सुना है? Yes. Yes. Sodium chloride. Yes. अच्छा, देश का नाम। अरे नालायक, तुमने NaBr का नाम सुना है? NaBr? यस। No. No. सोडियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। भाई ऑब्वियसली, ठीक है, इट इज सोडियम ब्रोमाइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो और नो क्यों पता बोल नहीं रहे हो? क्या होता है। अरे सॉल्ट होता है बेटा, जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, वैसे ही सोडियम ब्रोमाइड भी सॉल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड अपन खाते हैं, सोडियम Yes. ब्रोमाइड अपन नहीं खाते हैं। यस। सर सोडियम आयोडाइड भी होता है। सोडियम आयोडाइड भी होता है, सोडियम फ्लोराइड भी होता है, सब होता है, यस। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सोडियम के साथ चला जाएगा हैलोजन ग्रुप, सोडियम के साथ चला जाएगा हैलोजन ग्रुप, और R मिक्स होकर के क्या बनाएगा? अल्केन बनाएगा। अल्केन, यस। One alkyl group plus other alkyl group will give me a alkane. ठीक है गाइस? Yes. 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 Yes, sir. Yes, sir. जनरल रिएक्शन देखो, उसके बाद एग्जांपल देखना। Now this is important to know over here. It will give me, it is going to give me a higher alkane with even number of carbon atoms. अब यहाँ पे even number of carbon atoms क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है मुझे देख करके? सर समझा नहीं, इवन नंबर को। Even मतलब 2 का मल्टीपल। सर क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप है ना। अल्काइल Exactly. सेम है। दो सेम अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, यस। यस, इसीलिए, तो ठीक इवन है? ही आएगा। हाँ, इवन ही आएगा यहाँ पे, बिकॉज दो अल्काइल ग्रुप, और हमेशा जो अल्काइल ग्रुप हमने यूज किया है उससे बड़ा हमको अल्केन मिलेगा, यस। बड़ा हमको अल्केन मिलेगा। सर सब में 2Na कंपल्सरी। सर Yes, अगर yes. 2Na एक में 2 एटम्स ऑफ सोडियम कंपल्सरी है ना बेटा, बिकॉज अपने को 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स निकालना है ना वहां से, Yes. इसलिए। सर अगर एक में इथाइल है और हाँ। एक साइड में मिथाइल है तो इवन नहीं आएगा। एक में नहीं तो एग्जैक्टली। सो बच्चे, व्हाट द सीन ओवर हियर इज, यू हैव टू यूज द सेम अल्काइल हैलाइड ग्रुप, ठीक है? यहाँ पे ना ये रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए इसे दो अलग अलग दिया है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2RX। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2RX, ठीक है? यस। और सर आई एम लिसनिंग। कुछ इसका आवाज बीच में कट गया। शैरन, आई थिंक तुम्हारे नेटवर्क का इशू, आई कैन नॉट हियर यू बेटा। सर वो हाँ। X2 आएगा ना? कौन 2 आएगा? X। हाँ, तो 2RX में X भी 2 ही हो गया ना बेटा, 2R 2X। और प्रोडक्ट साइड पे भी देखो, 2NaX का मतलब क्या होता है? 2Na and 2X, राइट? यस, हाँ समझा समझे बच्चे? समझा सर समझा।
अच्छा, ये जनरल रिएक्शन सबको समझा, वर्ड्स रिएक्शन का जनरल रिएक्शन सबको समझ में आया है, तो मैं आगे एग्जांपल की तौर बढ़ूंगा। Yes. Yes. यस प्रचेत तुमको समझा बेटा? ये प्रचेत हवा क्यों बन गया? ओ माय गॉड, तेज हवा बन गया वो। ओके, आई कंसिडर इट एज अ यस, फाइन। ओके, ओके, आई कंसिडर इट एज अ यस, फाइन। ओ माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद? सर मेरा नहीं है वो, मेरा माइक नहीं है सर वो। हाँ, अभी कैसे बोला गूंगे? समझा कि नहीं तुमको? हाँ सर, वो मेरा माइक नहीं था पर वो जो हवा हाँ, का यश था। यश तुम्हारे माइक में से हवा का आवाज आ रहा है बेटा, यश। हाँ, ओके सर, ओके। ओके बेटा, ओके, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज द जनरल रिएक्शन, ये लिख लो आप लोग, जनरल रिएक्शन लिखो, और फिर ना Done, sir. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो आप मुझे बताना कि कौन सा अल्केन बनेगा और कौन सा सोडियम का सॉल्ट बनेगा। Yes. आप ये जनरल रिएक्शन लिखो सब लोग पहले। Done. सर इससे Done, sir. तीनों मेथड से मीथेन नहीं बनेगा ना? नहीं, इससे भी मीथेन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मीथेन में Yes. दो एक ही कार्बन एटम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे H नहीं। पहले वाले से अल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन मेथड से बन सकता है, ठीक है ना? हाँ, उसमें बन सकता हाँ, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से नहीं बन सकता, और वर्ड्स रिएक्शन से मीथेन पॉसिबल नहीं है। है। Yes. वेरी गुड बेटा शुभम, गुड ऑब्जर्वेशन। ये लिख लिया? कैन आई गिव यू द एग्जांपल नाउ? Yes. 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 यस And remember beta, this reaction is known as Wurtz reaction. Two alkyl halides reacting with two sodium give me higher alkane plus sodium का salt in the presence of dry ether. इतना difficult नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है? In the presence of Yes, dry ether. ट्राई। सर वो आ जाओ जो example, सर बोलो। सर वो देखो ना, आपने एल्काइल और एल्काइल ग्रुप को मिला के ड्राई ईथर से कन्वर्ट एल्केन बनाना। How? हाँ, Yes. तो फिर वो जो 2NaX लिखा है, तो फिर हाँ। X जो भी दो है, तो फिर हैलाइड का क्या बनेगा? बेटा हलाइड और सोडियम कंबाइन कर दिया है, हलाइड एंड सोडियम वो दोनों कंबाइन हुआ ना। हाँ आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 2x दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे भी 2x है। 2NaX का मतलब क्या होता है? 2Na हाँ। एंड 2x, राइट? यस। समझा बेटा? हाँ ओके, प्लीज ऐसे डाउट्स पूछो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज डाउट्स पूछो, हाँ, अपने दिमाग में कोई भी डाउट मत रखो। अच्छा, अब देखें आप, ब्रोमो इथेन लिया है, 2 ब्रोमो इथेन लिया है। नाउ व्हाई आर वी राइटिंग इट दिस वे? इट इज इजियर फॉर अस टू राइट डाउन द प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग उसको अलग अलग लिखते हैं। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमो इथेन रिएक्टेड विद, Methane. सुन लड़की, 2 ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, क्या बोल रहा हूं मैं? Methane है, methane. मीथेन है सर। तो मैंने क्या बोला? इथेन। ईथेन कुछ भी, मैंने ब्रोमो मीथेन बोला। Ethane बोला Ethane था। बोला Ethane बोला। रिकॉर्डिंग में देखो सर। अच्छा बेटा, हाँ वही बोल रहा, मेरी गलती है तो तुम लोग सब लोग कैसे बोलने लगे? क्वेश्चन पूछो तो सबको साफ सूंघ जाता है। ओके, वेरी गुड, आई वाज जस्ट चेकिंग वेदर यू आर लिसनिंग और नॉट। ओके, नो। सो दिस इज ब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन को अपन ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया, तो सिंपल सी बात है, जो अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं उनको साथ में जोड़ दो, और जो सोडियम और ब्रोमीन बचा उसको साथ में जोड़ दो, खत्म, आपका आंसर सामने सामने आ गया। अब इसमें से अल्काइल ग्रुप कौन सा? एक मिनट, कौन बताएगा? अधीना आर यू देयर बेटा? अधीना बीजू, नाम लेती भाग गई, नहीं है अधीना। श्रवणी चौहान। My God, there are 3 Shravani in this class. Shravani K, Shravani Patankar. Yes. बोली? हाँ, श्रवणी चौहान। ओके बेटा। Hello. बेटा आप मेरे को, हाँ बेटा मुझे आप बताओ, इसमें से कौन सा अल्केन मुझे मिलेगा? Bromine. Okay. That is some different thing altogether what you just told me बच्चे। अब देखो बच्चा, ऊपर जो आपको जनरल रिएक्शन है और नीचे का जो एग्जांपल है उसको कंपेयर करो। मैंने क्या बोला
जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उन दोनों को ज्वाइन कर दो और आपको मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग अल्केन। तो वो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है नीचे बेटा, इट इज ब्रोमो मीथेन प्लस सोडियम प्लस ब्रोमोमीथेन। हाँ, तो इसका मिथाइल ग्रुप और इसका मिथाइल ग्रुप CH3 और CH3 जब आप ज्वाइन करोगे आपको कौन सा अल्केन मिलेगा बेटा? मीथेन। आर यू श्योर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन बेटा? मीथेन इज CH4 ना श्रवणी? yes. हाँ, एंड जब मैं CH3 और CH3 ज्वाइन करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा? C2H6, राइट? ईथेन। हाँ, तो क्या हो गया बच्चे? ईथेन। इथेन। तो इस एग्जांपल में मुझे इथेन मिलेगा और सॉल्ट कौन सा मिलेगा? सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड। ओके यस। गाइस, अंडरस्टूड? यस। Yes. आ जाओ, इथेन मिला। अभी CH3 इज व्हाट बेटा? इट इज इथेन ओनली ना? C2H6 है ना वो? यस। यस। अच्छा, अभी देखो, नाउ आई विल आंसर क्या बोलते हैं दिस गर्ल्स क्वेश्चन। Sharon, you had asked me ना, अगर एक मीथेन रहे, एक मिथाइल रहा और एक इथाइल रहा तो अपने को ये नहीं मिलेगा। यस। अच्छा, यहाँ देखो, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इफ आई टेक टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ग्रुप्स, RX प्लस सोडियम प्लस R-X। R- मतलब वो दूसरा अल्काइल ग्रुप है। अगर एक ये है, मीथेन है, मिथाइल है, तो दूसरा क्या हो सकता है? इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। एक इथाइल दूसरा प्रोपाइल, एक इथाइल दूसरा क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है दैट वे। ठीक है, दो अलग अलग अपना क्या बोलते हैं अल्काइल ग्रुप्स। तब हमको क्या मिलता है? At that point of time, you get a mixture of alkanes. You get a mixture of alkanes. What is the possible combination? R, ठीक है, R, and R. Okay. Sir, So repeat. these are, है? Repeat क्या बोलो बेटा? करना। ये Repeat स्पेशल अभी केस रिपीट किया करना। कहाँ है repeat? फास्ट हो गया। सर हाँ, आर कैसे आएगा? आर और आर डैश R. है ना, तो आर कैसे आएगा? दो R कैसे आएगा बेटा? R बिल्कुल आएगा बेटा यहाँ पे। नाउ सी यू गाइस, व्हेन आई एम टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, जब मैंने यहाँ पे लिखा है तब मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 mole of RX. 1 mole of RX contains so many molecules of RX, right? Yes. And when I take 1 mole of R-X, that will also contain so many molecules of R-, right? Say yes. Yes. बेटा सर देख, 1 मोल में 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है बेटा, बता मेरे को। n बहुत सारे। into 6.02 into 10 raised to 23. 6.02 to Avogadro's 10 number. 23. Avogadro's number, correct. NA. 6.023 Yes. into 10 to the power 23. तो वो कंसिडर करके वहां पे ये तीन कॉम्बिनेशंस अपने को आता है, R and R-. ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। Now let us see an example for this. So Wurtz reaction for methyl iodide and ethyl iodide. ये देखो बेटा, इसको समझना। सोडियम सॉल्ट जो है वो सेम मिलेगा, बिकॉज अल्काइल ग्रुप सेम है। इट्स जस्ट दैट सॉरी हैलाइड ग्रुप सेम है, बस अल्काइल ग्रुप अलग अपने को मिल रहा है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम सर इसमें रिएक्टिंग। 2Na आएगा ना? सर इधर बेटा। 2Na आएगा। सर 2Na आएगा ना ऊपर फर्स्ट का? 2Na और 2Na आएगा ना फर्स्ट में। हाँ, फिर लास्ट फर्स्ट में वाला, 2Na हाँ, आएगा। ये बेटा फर्स्ट वाला बैलेंस नहीं है, देखो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी उसने 2Na नहीं लिखा है। यस। ठीक है, यू आर राइट, इट्स 2Na आना चाहिए, वो तुम लोग ऐड कर देना लिखते वक्त। देखो बेटा, एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर। नाउ इफ यू सी
योर आंसर शुड बी ओनली दैट फर्स्ट लाइन जो आपको दिख रहा है, बट वो फर्स्ट लाइन आया कैसे, वो राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट्स आया कैसे, वो 3 पार्ट्स में उसने तोड़ के नीचे दिखाया है। ये देखो, CH3I will react with sodium, C2H5 will react with sodium, CH3I and C2H5 will react with sodium. ओके, तो अगर आप देखोगे इथेन और ब्यूटेन ये दो जो हैं आपको इवन नंबर के मिल रहे हैं, एक में 2 है, एक में 4 है। अगर आप प्रोपेन की बात करो तो उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। सो अब इथेन भी मुझे मिल सकता है, इसमें ब्यूटेन भी मिलेगा, प्रोपेन भी मुझे मिलेगा, मुझे 3 मिक्सचर्स मिलेंगे। अब इसमें से ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, प्रोपेन का परसेंटेज कम होगा। यस ओके, आई कुड हियर वन एस, ये लिख लो बेटा। Yes. This is your words reaction. I'm going to take a test on all these reactions. Obviously तुम पहले प्रैक्टिस करना अच्छे से। तुम्हें कोई भी डाउट है, it is open to anyone, any doubt you can ask me anytime. Do not feel shy, please. I cannot see you, you cannot see me. तो किस बात की शर्म, बिंदास पूछो। I'm not here to judge anyone. I don't even remember names. मुझे नाम भी याद नहीं रहते किसी के। सर लास्ट रिएक्शन में CH3 C2H5 क्यों है, बाद में CH3 CH3 और C2H5 C2H5 क्यों नहीं आया? बिकॉज उसका लेफ्ट हैंड साइड में देखो CH3 और C2H5 है ना। यस अच्छा, I'll tell you, पहला वाला रिएक्शन दैट इज द मेन रिएक्शन। वो जो 3 प्रोडक्ट्स मिले ना अपने को, CH3 CH3 C2H5 C2H5 और CH3 C2H5, वो कैसे मिले हैं, वो किसके रिएक्ट करने से मिले हैं, वो उसने नीचे बस एक्सप्लेन किया तोड़ के उसको। यस यस ओके, यस सर समझा। सर Yes, sir, समझा। सेकंड और थर्ड जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, और वो सिर्फ फोर्थ वाला जो है वो ही ये टाइप का है, तो कैसा है? मैं नहीं समझा यही टाइप का मतलब। सेकंड और थर्ड रिएक्शन जो है, जो हाँ, वो आपने जो पहला रिएक्शन बताया था ना नॉर्मल हाँ, वाला, हाँ, उसके बेस पे। उसके बेस पे ये भी उसी के बेस पे है, बस अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, दैट वे। सी देखो, आई टेल यू वन थिंग बच्चे, जब मेरे को कोई स्पेसिफिक अल्केन चाहिए ना, तो मैं सेम अल्काइल ग्रुप्स क्या बोलते हैं यूज करूंगा। बट व्हेन आई वांट अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक्सपेरिमेंट के लिए इथेन ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर चाहिए, तब मैं ऐसा वाला रिएक्शन करेगा जिसमें मैं अलग अलग अल्काइल ग्रुप लूंगा, CH3 और C2H5। अगर मैंने CH3 लिया होता तो मुझे इथेन ही मिलता था, अगर मैंने C2H5 लिया होता तो मुझे ब्यूटेन ही मिलता था। पर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दोनों यूज किया है, तो मुझे इथेन ब्यूटेन एज वेल एज प्रोपेन मिला है, दैट वे। So when you're using a single alkyl group, you get a single alkane. But when you're using different alkyl groups, you get a mixture of alkanes. That is what we are trying to show over here. इतना सन्नाटा? यस सर Yes, sir. बोलो बोलो बोलो। समझा मतलब। अच्छा, गुड। ये जितना ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। दिस इज सेम लाइक मैथ्स। Now, why don't we carry out such reactions? Because it becomes difficult to separate this mixture. ये जो इस ऐसा अलग अलग अल्काइल ग्रुप यूज करके जो मुझे इथेन ब्यूटेन प्रोपेन का मिक्सचर मिला है, वो सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। Yes. यस This method, that is why it is not suitable to prepare alkanes with odd number. तो इसीलिए हमेशा हमको इसमें से 2, 4, 6 क्या बोलते हैं 8 और 10, 12, ठीक है, इवन नंबर। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर इवन नंबर ऑफ alkanes with having even number of carbon atoms, ठीक है बेटा। Yes. यस ओके, Sharon, सर फर्स्ट
रिएक्शन सुनो लड़की, मतलब नहीं तुम रिएक्टेंट सुनो I'll clear it out better, रुको. See, I showed you one words reaction. Then you asked me what will happen if I use R and R dash to different alkyl groups. So what is going to happen when you use R and R dash? You will get a mixture of alkanes. Now, when you get a mixture of alkanes, it is difficult for us to separate out those mixture of alkanes. And that is why we do not use different alkyl groups in this method. We only use same alkyl groups so that we get alkanes only with even number of carbon atoms. Therefore, Wurtz reaction is used only to obtain alkanes with even number of carbon atoms. Full stop. अब बोलो बेटा. सर फर्स्ट रिएक्शन जो है ना उसका रिएक्टेंट और फोर्थ रिएक्शन जो है उसका रिएक्टेंट दोनों सेम है पर प्रोडक्ट अलग क्यों है? नहीं. See, that is what I told you in the beginning, बेटा. जो first reaction है, that is the main reaction. जो नीचे के 3 reactions आपको दिख रहे हैं? Yes. These 3 reactions are showing you what exactly is happening inside this reaction. इस reaction में CH3I भी react कर रहा है, C2H5 भी react कर रहा है और CH3I C2H5 भी react कर रहा है. That is what he is showing you in the steps, in the below steps. वो जो नीचे के 3 steps हैं, that is showing you कि उस एक reaction के अंदर कौन से 3 reactions हो रहे हैं. अभी समझा बेटा? Yes. वो जो नीचे के 3 reactions है, those are the subparts of that first main reaction. And the best part is we will never get this Rx and R dash X वाला, क्योंकि this method is not used to prepare alkanes with odd number of carbon atoms, because फिर उसमें क्या होता है, उसमें I get a mixture of alkanes which is difficult to separate. Yes. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई भी satisfy नहीं हुआ है Wurtz reaction से. यस समझा. समझा है सर, समझा है. समझा सर. समझा. अच्छा, तो ये याद रखना बेटा कि Wurtz reaction we are going to use for making even number for making alkanes with even number of carbon atoms and not with odd number of carbon atoms. Even Yes. बोले तो 2 4 6 8 10 पर हाइड्रोजन 12. भी तो इवन नंबर का ही बनेगा ना. क्या बेटा? हाइड्रोजन भी इवन नंबर का ही रहेंगे ना हाइड्रोजन कहाँ लिया है हमने यहाँ पे? सर. नहीं, कार्बन हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाँ, अरे हाँ, मतलब हाइड्रोकार्बन को मैं मेनली अल्केन्स को मैं कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिसाइड करता हूँ ना बेटा, कि कितना कार्बन एटम है. यस ठीक है, हाइड्रोजन तो सप्लीमेंट्री उसका वैलेंसी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. यस ओके गाइस, ये लिख लिया? यस Yes. Yes. प्लीज वो स्टेटमेंट भी लिख लेना जो मैंने बोला था. कौन सा सर? Please repeat. डिक्टेट करो. Wurtz reaction is used only to prepare alkanes. Only to prepare alkanes. पीयूष, तुम्हारा माइक कौन है बेटा? सर. नो सर. हाँ बेटा, पीयूष पाउशे. सर स्टार्टिंग से बोलो ना. मैं स्टार्टिंग से बोलता है. Wurtz reaction is used to prepare. Wurtz reaction is used to prepare alkanes having even number of carbon atoms. Having even number of carbon atoms. Full stop. उसके नीचे थोड़ा सा explanation लिख लो ताकि आप बाद में confuse ना हो जाओ. In Wurtz reaction, alkyl halides with the same alkyl group, are used. Full stop. If
if different alkyl halides are used, if different alkyl halides are used, we get a mixture of alkanes. We get a mixture of alkanes which is difficult to separate. Which is difficult to separate. ठीक है? सर पहले से रिपीट ए भाई ये मैंने अपने से बना के बोला था, मुझे याद भी नहीं रहेगा मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में। मैंने कॉल आया था। अच्छा, लास्ट लाइन रिपीट करो। ओए होए, किसी ने पूरा लिखा है? कोई रिपीट कर सकता है प्लीज? Yes. अंकिता ने Yes, लिखा है। हाँ अंकिता प्लीज रिपीट करो बेटा। From starting onwards, sir. यस बेटा, फ्रॉम स्टार्टिंग। वर्ड्स रिएक्शन Words reaction is used to prepare alkanes having even number of carbon atoms. ओनली। Inverse reaction, alkyl halides with the same alkyl group are used. If different alkyl halides are used, we get a mixture of If different alkanes halides which are is used, difficult to yeah, we get a mixture of alkanes which is difficult to separate. Correct. Correct. थैंक यू बेटा अंकिता। सबने सुना? Yes. सर मैंने लिख दिया था। वेरी गुड शुभम। शारन सुना बेटा कि फिर से फोन आ गया? सर वी गेट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर यूज्ड, वी गेट मिक्सचर ऑफ, उसके बाद नहीं है। फिर उसके what, बाद which is We difficult get to a separate. mixture of बोलो बोलो। alkanes. We get a mixture of alkanes which is difficult to separate. Okay guys, लिख लिया सबने? yes, Yes. Can we move on to the next method? Preparation of alkane from carboxylic acids. हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसका नाम क्या है? इथेन ब्यूटेन, मतलब रियल नेम क्या है इसका? किसका? ये प्रोडक्ट का। CH3 और देख बेटा, CH3 is अपना इथेन, C2H5 is ब्यूटेन। मतलब अलग अलग करके लिखने का है? हाँ ऑब्वियसली बेटा, वो बीच में प्लस साइन दिया है ना बेटा, वो अलग अलग है, वो एक साथ ज्वाइन नहीं है। ठीक है? ठीक है, बट ये वाला कंडीशन जो है ना, ये हम लोग कभी नहीं यूज करेंगे क्योंकि अपने को मिक्सचर मिलता है जो सेपरेट करने को डिफिकल्ट हो जाता है। सर ये एग्जाम में नहीं आएगा ना? नहीं आएगा बेटा, और जो पहले एग्जांपल दिया था वैसे वाले ही आएंगे। ठीक है? Yes. बट ये आपको एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। Yes. Can we move on to decarboxylation? Yes. Carboxylic Yeah. acid. हाँ, मतलब उसका अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा ना रे। Yes. Let's see how alkanes can be prepared from carboxylic acids. देख भाई, जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है ये जनरल रिएक्शंस को देख करके, पर जनरल रिएक्शंस को देख करके समझना, उसके लिए आपको जो नोटिफिकेशंस है वो समझ में आने चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया है अपने को दिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH। अब उस H को मैं अगर वहां से हटा करके उसमें सोडियम डाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो जाएगा। जैसे NaCl होता है, ये क्या हो जाएगा? NaCOOR। तो ये भी एक सॉल्ट होता है बेटा, बट इट इज द सॉल्ट ऑफ हायर ऑर्डर। अयो समझा? NaCl is a salt of sodium and chlorine, and this carboxylic acid का salt is
NaCOOR। ठीक है बेटा। अब इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा? एक एल्कली के साथ रिएक्ट करूंगा। कौन है रे एल्कली? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आप लोग को पता है व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई विल रिएक्ट दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड I will heat it in the presence of the catalyst called as calcium oxide। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में उसको हीट करता हूं तो क्या होता है? R के साथ H अटैच हो जाता है और आपको सोडियम कार्बोनेट एज अ साइड प्रोडक्ट मिल जाता है। मिल जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड विल ब्रेक इनटू NaO एंड H। उसका H कहां पे जाएगा? R के साथ, और मुझे क्या मिल जाएगा? अल्केन। और उसका O और Na कहां पे जाएगा? वो COO Na के पास चल करके मुझे Na2CO3 दे देगा। अरे समझा सर। Yes. अरे ये Yes. देखो, ये दिख रहा है तुमको? ये जो सोडियम Yes. हाइड्रोक्साइड है, इसका सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग टूट जाएगा। इसका हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? अल्काइल अल्केन ग्रुप के साथ। बनेगा। अल्काइल ग्रुप के और साथ। अल्केन दे देगा। और बाकी Yes. जो कुछ बचा वो क्या होगा? कंबाइन होकर के मुझे क्या मिल जाएगा? सोडियम Na2CO3। कार्बोनेट। Na2CO3। आओ, करेक्ट। Yes, sir. So here what's happening? Elimination of, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो रहा है ना सोडियम सॉल्ट में से, इसलिए हम लोग इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या यस। बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। रिलेशन। आओ एग्जांपल देखें। सोडियम प्रोपियोनेट विथ हीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम प्रोपियोनेट, इसके अंदर अपना अल्काइल ग्रुप कौन सा है बेटा? हाँ, प्रोपेनल। प्रोपेन। इसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा दिख रहा है बेटा तुमको? प्रोपेन प्रोपाइल कहाँ है। से? मिथाइल है। कहाँ मिथाइल। कहाँ से दिख रहा है प्रोपेन? डाइल। इथाइल। इथाइल है ना? इथाइल। इथाइल है ना? इथेन। यस इथाइल। इथेन होगा, इथेन। सर इथेन होएगा ना? इथेन होएगा। C2H6. सर इथाइल कैसे आएगा? एग्जैक्टली। तो आप मेरे को बताओ देख करके इसमें कौन सा दिख रहा है सर आपको? CH2 आएगा, वो बीच में CH2 आएगा। बीच में कहाँ आएगा? CH3 और C के बीच में CH2 आएगा। एग्जैक्टली, यू कैन सी दिस एरर ओवर हियर। कुठे गेला रे Yes. Yes, yes. माझा? ये देखो, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे 2 आएगा। हाँ तो आप यस। लिखते वक्त 2 लिखना उसमें, तो उसमें से मेरे को इथेन मिल जाएगा। इथाइल। ये देखो, इथेन मिला और सोडियम कार्बोनेट मिल गया। सिंपल एज दैट। यस। ये देख, सर ये O जो माइनस क्यों है? ये जो दे रखा है ना बेटा, O COO, माइनस। ये Na और O के साथ रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो इथाइल ग्रुप के अंदर। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? O क्या? O माइनस कैसा है? वो वहां पे इट इज शोन दैट उसका आयनिक नेचर वहां पे दिखाया हुआ है, सोडियम और ऑक्सीजन। दैट इन दैट सॉल्ट इज अ आयोनिक सॉल्ट। मतलब है तो ये कोवैलेंट कंपाउंड, बट O और Na के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस दिखाया हुआ है। Sodium electropositive, oxygen electronegative. When they share electron, the shared pair of electron move towards oxygen, because of which Yes, negative yes. charge comes on oxygen and positive charge comes on sodium. Sodium. Kadla. Yes. Oh, Yes, sir. Yes. हो नो हो। सगळ्यांना कळालं का? हे लिहिलं Yes, का? sir. ये Yes. लिया क्या No. आपने? लिहिलं. Yes, Yes sir. yes, अच्छा, सब लिख लेने की। yes. Yes. पागल है क्या? हट। अरे okay, let's move ahead. Now we will see Kolbe's electrolytic method. ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही है, but it is going to be Kolbe's electrolytic method, which is the क्या बोलते हैं, commercial method of preparation of my क्या बोलते हैं, alkane. So we'll continue this in the next lecture then. ठीक है? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. सर Yes. ये
सोडियम के साथ क्यों होता है?